Hello everyone. We are discussing about curve fitting, and for curve fitting we are using the method of least square. In part 1 we have fitted a straight line to the given data. We know a general equation of a straight line is y equal to a plus bx, and we have some normal equations and we have solved them. Now in this section we are fitting a second degree curve or a parabola to the given data. We know a general equation of a second degree curve or a parabola is given by y equal to a plus bx plus cx square. Here equation number 1. In this equation we have three unknown constants a, b and c. Therefore we should have three equations. The three normal equations are given by equation number 2. This is summation y equal to na plus b summation x plus c summation x square. Summation xy equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. And the last equation is summation x square y equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x4. क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में तीन अननोन कांस्टेंट है ए बी सी, इसलिए तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए थी. वो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में ली है. n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, x की या y की, दोनों की वैल्यूज इक्वल है. अब हम इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उनसे a, b, c कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड डिग्री कर्व या इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. इसी तरह से इन जनरल द कर्व y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अप टू k x टू द पावर m माइनस 1 कैन बी फिटेड टू अ गिवन डेटा बाय राइटिंग m नॉर्मल इक्वेशंस. Now let us solve an example for a fitting of a second degree parabola. The question is, find least square polynomial approximation of degree 2 to the following data. The values of x and y are given. The values of x are 0, 1, 2, 3 and 4. The corresponding value of y are minus 4, minus y, minus 1, 4, 11 and 20. Okay, now the second degree curve can be written as y equal to a plus bx plus cx square. In this equation we have three unknown constants a, b and c. Therefore the corresponding normal equations in this case are given by summation y equal to na plus b summation x plus c summation x square. Summation xy equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. And the last equation is summation x square y equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x to the power 4. इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन में हमें x की या y की टोटल 5 वैल्यूज गिवन है. देयरफॉर इन दिस केस स्मॉल n इज इक्वल टू 5. टेबल बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम x 0, 1, 2, 3, 4. Second column y, the values are minus 4, minus 1, 4, 11, 20. Third column x multiply y, x और y की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है. 0, minus 1, 8, 33, 80. नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर 0, 1, 4, 9, 16. नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y 0, minus 1, 16, 99, 320. अगला कॉलम x क्यूब 0, 1, 8, 27, 64. लास्ट कॉलम x टू द पावर 4 0, 1, 16, 81 और 256. सारे कॉलम्स को ऐड करते हैं. फर्स्ट कॉलम में समेशन x 10 है. नेक्स्ट कॉलम में समेशन y इज 30. नेक्स्ट कॉलम समेशन xy 120. समेशन एक्स स्क्वायर 30, समेशन एक्स स्क्वायर वाई 434, समेशन एक्स क्यूब 100 और लास्ट में समेशन एक्स टू द पावर 4 इज 354. सारी वैल्यूज़ वापस से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. हमें इक्वेशंस मिल जाएगी 30 इक्वल टू 5a प्लस 10b प्लस 30c. 120 इक्वल टू 10a प्लस 30b प्लस 100c. लास्ट इक्वेशन 434 इक्वल टू 30a प्लस 100b प्लस 354c. तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं.
सोल्व करने के बाद हमें रिजल्ट में तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल रही है, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू +2 एंड c इक्वल टू +1। तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो कि हमने पैराबोला या सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन मानी थी, y इक्वल टू a + bx + cx²। वैल्यूज़ पुट करने पर हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है y इक्वल टू -4 + 2x + x²। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ सेकंड डिग्री फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट डेटा। द वैल्यूज ऑफ x आर -2, -1, 0, 1, 2। corresponding values of y are 15, 1, 1, 3 and 19. Again we know the second degree curve can be written as y equal to a plus bx plus cx square, equation 1, and corresponding normal equations are summation y equal to na plus b summation x plus c summation x square. Second equation is summation xy equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. The last equation is summation x square y plus a summation x square plus b summation x cube plus c summation x power 4, इक्वेशन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x और y आर 5, देयरफॉर n इक्वल टू 5। टेबल बनाते हैं फिर से। फर्स्ट कॉलम x, सेकेंड कॉलम y, थर्ड कॉलम xy, नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर, नेक्स्ट x स्क्वायर y, नेक्स्ट x क्यूब और लास्ट x की पावर 4। सारे कॉलम हमने तैयार कर लिए हैं और समेशंस हैं। समेशन x 0 आ रहा है, समेशन y 39, समेशन xy की वैल्यू 10 है, समेशन x स्क्वायर भी 10 है, समेशन x स्क्वायर y 140, समेशन x क्यूब 0, समेशन x की पावर 4 34। सारे समेशंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, और नॉर्मल इक्वेशन बनती है 39 इक्वल टू 5a प्लस 0b प्लस 10c। सेकेंड इक्वेशन है 10 इक्वल टू 0a प्लस 10b प्लस 0c, और लास्ट इक्वेशन है 140 इज इक्वल टू 10a प्लस 0b प्लस 34c। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल रही है हमें, a इक्वल टू -37/35, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 31/7। तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी सेकंड डिग्री कर्व या पैराबोला की इक्वेशन है, जिसे हम फिट करना चाह रहे थे, उसमें पुट करने पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन आता है y इक्वल टू -37/35 प्लस x प्लस 31/7 एक्स स्क्वायर। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के अंदर हमें गिवन डेटा को स्ट्रेट लाइन के अंदर फिट करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में गिवन डेटा को हमें एक सेकंड डिग्री पैराबोला में फिट करना है। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। कर्व फिटिंग का एक तरीका और हो सकता है, अगर x की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस इक्वल हो और गिवन डेटा बहुत बड़े नंबर्स हो, उस केस के अंदर हम स्केल को चेंज करते हैं। तो देयरफॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्केल। If the data is of equal interval in large numbers, then we change the scale as u equal to x minus x naught upon h and v equal to y minus y naught upon h। हम दो नए नंबर्स एज्यूम करते हैं, u और v। Here x naught and y naught are assumed means or middle values of x and y series respectively। x naught और y naught x और y की सीरीज की मिडल वैल्यू है या उनके मीन्स है, and h be the difference of two continuous values of x, or h is the width of the interval। Question number 1, fit a second degree parabola to the following data by least square method। The value of x are 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934। The corresponding values of y are 352, 356, 357, 358, 360, 361। अभी नेक्स्ट लाइन और है, x की वैल्यू 1935, 1936, 1937 और y की वैल्यू 361, 360, 359। हम देख सकते हैं कि x की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल है, जो कि 1 है, और x और y दोनों सीरीज के अंदर जो नंबर्स हैं बहुत बड़े नंबर्स हैं। देयरफॉर वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ स्केल। नाउ इन दिस केस we assume
the middle values of x and y as x naught and y naught, which is x naught equal to 1933 and y naught is equal to 357. The difference of two continuous values of x is 1. Therefore, h is equal to 1. According to formula, u equal to x minus x naught upon h is equal to x minus 1933 upon 1 is equal to x minus 1933, and v equal to y minus y naught upon h is equal to y minus 357 upon 1 is equal to y minus 357. Now the second degree parabola y equal to a plus bx plus cx square becomes v equal to a plus bu plus cu square, equation 2. Now construct the table. x और y वेरिएबल u और v नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे. u की वैल्यू है x माइनस 1933 और v की वैल्यू है y माइनस 357. तो इसी के अकॉर्डिंग अगले कॉलम u v, u स्क्वायर v, u क्यूब और u 4 होंगे. समेशन सब कैलकुलेट कर लिए हैं. समेशन u है 0, समेशन v 11, समेशन u v 51, समेशन u स्क्वायर 60, समेशन u स्क्वायर v माइनस 9, समेशन u क्यूब 0 और समेशन u टू द पावर 4 इज 708. टेबल से सारी वैल्यूज़ नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर देते हैं. इस केस में हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस है. समेशन v इक्वल टू 9a प्लस b समेशन u प्लस c समेशन u स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन है समेशन u v इक्वल टू a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर प्लस c समेशन u क्यूब. और तीसरी इक्वेशन है समेशन u स्क्वायर v इज इक्वल टू a समेशन u स्क्वायर प्लस b समेशन u क्यूब प्लस c समेशन u टू द पावर 4. सारे समेशंस की वैल्यू टेबल से पुट करते हैं और नॉर्मल इक्वेशंस कन्वर्ट होती है. 11 इक्वल टू 9a प्लस 0b प्लस 60c. सेकेंड इक्वेशन 51 इक्वल टू 0a प्लस 60b प्लस 0c. और लास्ट इक्वेशन माइनस 9 इक्वल टू 60a प्लस 0b प्लस 708c. तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर कैपिटल A, B और C की वैल्यूज़ मिलती है हमें. A इक्वल टू 694 अपॉन 231, B इक्वल टू 17 अपॉन 20 एंड C इक्वल टू माइनस 247 अपॉन 924. तीनों वैल्यूज़ हम सेकेंड डिग्री पैराबोला के अंदर पुट कर देते हैं जो कि हमारा V और U की टर्म्स में है और ये इक्वेशन बनती है V इक्वल टू 694 अपॉन 231 प्लस 17 अपॉन 20 U माइनस 247 अपॉन 924 u स्क्वायर. u और v को फिर से x और y की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. v की वैल्यू थी y माइनस 357 और u है x माइनस 1933. दोनों वैल्यूज़ उनकी अपनी अपनी जगह पुट करते हैं. हमें इक्वेशन मिलती है y माइनस 357 इक्वल टू 694 अपॉन 231 प्लस 17 अपॉन 20 u की जगह x माइनस 1933 माइनस 247 अपॉन 924 और u स्क्वायर की जगह x माइनस 1933 होल स्क्वायर. दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करने पर लास्ट फाइनल इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू माइनस 1,000,106.41 प्लस 1034.29x माइनस 0.267 x स्क्वायर. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन.